Hello friends and a very good morning to all of you. I Anchal welcome you all on this session and today we'll be doing sentence improvement. ठीक है, तो आज हमारा पैटर्न जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है वो है एक नया पैटर्न where you will have your sentence divided into 3 parts. ठीक है, आपके जो सेंटेंस है a sentence is divided into 3 parts A, B and C. You have to judge which part of the sentence doesn't have an error. ठीक है, इन तीनों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो एरर फ्री है. ठीक है, you have to judge which part is error free. कौन सा पार्ट है जिसमें एरर नहीं है. This is what you have to find out. ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे. ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं but mind it, there may be an error only in one part, there may be an error only in 2 parts, there may be an error in all the 3 parts or there may be no error at all. ठीक है, हो सकता है एक में एरर हो सकता है 2 में एरर हो सकता है 3 में एरर हो सकता है एरर ही ना हो. ठीक है, सो ये हमें जज करना है. अब ये बात आपको मालूम होगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, दीज आर 4 सेंटेंसेस दैट आर टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर. राइट, ये ग्रामर के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन अगर आप अपनी रीडिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं सो ऑफ कोर्स ये आपको मदद करेगा. ठीक है, ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. लेट्स हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. हियर इट इज. Although the move from the US authorities to arrange to dispose of Headley from the Mumbai court now hearing the 2011 conspiracy case had come late, it is still no few welcome. साउंड फट रहा है, ऐसा क्यों भाई? नहीं हो रहा कुछ ऐसा? गुरु माता जी, माता जी, नाइस, आई लाइक इट. चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर. हम कहाँ से? हम धरती से है ना, हम सब धरती से भाई. चलो, although the move from the US, although the move from the US authorities to arrange. Now tell me first of all, क्या A में कोई गलती है? A में कोई गलती है? What are we talking about? Although the move from the US authorities to arrange. Although that means you are contradicting something. You're telling me 2 contradictory things, right? 2 opposite चीज़ों के बारे में आप मुझे express कर रहे हो. Absolutely correct. The move from the US authorities. Move जो US authorities से आया है क्या करने के लिए? Now wherever you have to define a purpose, जब भी आपको purpose define करना होता है तो हम क्या use करते हैं? Infinitive का use करते हैं, which is 2 plus arrange, है ना? Which is 2 plus arrange. This is absolutely correct. ठीक है, that means A में कोई गलती नहीं है. B में देखो गलती है, the depose of. Now the depose of Headley from the, रुको मेरी बात सुनो. You have an article here, you have a preposition here. जब article और preposition use होता है so the word used here should be a noun. ठीक है, when an article is used and a preposition is used together and you have to place something in between, that has to be a noun. Now depose is not a noun. Depose noun नहीं है. Deposition would be the noun. ठीक है, deposition आपका noun होगा, depose noun नहीं होता. ठीक है, depose is a verb. Of Headley from the Mumbai court now hearing the 2611. अब यहाँ पर ये आपको error आपका मिल गया. The first error that you got in this sentence is deposition. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. The Mumbai court now hearing the 2611 conspiracy case had come late. अच्छा, okay. Do we have an error in C? C में error है? Yes, deposition is absolutely correct. But C में कोई गलती नहीं है. क्यों? Sorry, C में गलती है. C में गलती है. I am sorry. C में गलती है और वो क्या गलती है वो हमें समझना है. वो क्या गलती है वो हमें समझना है. That is, यहाँ लिखा है had come. Now you know had plus V3. Had plus V3. This follows past perfect tense, right? But past perfect is used. Past perfect is used when? कब? When the time slot is given, a time period is mentioned. जब time period mention होता है तब आप had come लगाते हो. But here we don't have any time, right? हम यहाँ पर कोई भी time period की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम कोई भी time period की बात नहीं कर रहे हैं. That means we have an error here and had की जगह हम लगाएंगे has. ठीक है, has ही लगेगा. Conspiracy case has come late. It is still no few welcome. So यहाँ पर अच्छा एक और गलती है.
when you welcome somebody. No few welcome. No few welcome. Now tell me, welcome is something which defines an uncountable noun, right? Welcome define करता है uncountable noun को. That means you cannot place few here. आप few नहीं लगा सकते तब. आपको क्या लगाना पड़ेगा? You'll have to place less here, right? So we have two errors in C part. The correct sentence is, although the move from the US authorities to arrange the deposition of Headley from the Mumbai court now hearing the 2611 conspiracy case has come late, it is still no less welcome. Got it? ठीक है? Welcome के लिए few नहीं लग सकता, less का use करेंगे. Absolutely correct. Then again we have an error in C part. That means हमारा error free वाला जो statement है, that is only A. ठीक है? Our correct sentence is only A. Got it? Only A. Got it? चलिए अब चलते हैं अगले question की तरफ. Let's move on to the next one. Here it is, the cooperation among the state, the center and DMRC was most evident during the odd-even scheme when the frequency of metro trains was increased to accommodate the expected rise in footfall. बताओ क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए अब. What do you think the correct answer is? What do you think the correct option is? आपको क्या लगता है कौन सा option यहाँ पर सही है? A sweet good morning to you too. Sweet good morning. मीठी चख ली क्या भाई तुमने? Morning भी. बताओ. The cooperation among the state, the center and DMRC. Now among, are you sure? States नहीं होगा. सुनो. When I say the state, this means the state government. When I say the center, this means the central government. ठीक है? ये center states यहाँ पर ये नहीं हुआ कि आप राज्य की बात कर रहे हो. इसका मतलब हुआ the state का मतलब होता है state government, the center का मतलब होता है central government. Got it? The cooperation among the state नहीं होगा, the center नहीं होगा, and DMRC नहीं होगा. Why? Because we have 3 different names. Guys मैंने बता रखा है ये condition आपको. अभी बता दो जल्दी से क्या होगा. We have 3 different names mentioned. हमारे पास 3 different names mentioned है. The state, the center and DMRC. Center government, state government and DMRC. Tell me. We have 3. हाँ. We have 3 words. C correct है नहीं है पहले ये बताओ. हम एक एक करके solve करेंगे ना. क्या क्या गलतियाँ हैं वो भी तो निकालना ज़रूरी है. तभी तो हमें समझ में आएगा कि गलतियाँ निकालते कैसे हैं. है ना? Put holes. बताओ. बताओ यहाँ पर क्या लगेगा? The state, the center, DMRC. What do you think? We have 3 different names given. जब हमारे पास proper nouns given होते हैं तब हम amongst का use नहीं करते, तब हम between का use करते हैं for even more than 2. More than 2 के लिए भी between का use होता है जब when between का use होता है. नहीं amongst नहीं लगेगा guys. Please understand this saying. इसको समझो. जब हमारे पास names given होते हैं, when we have proper names given, जब proper noun given रहता है तब 2 से ज़्यादा के लिए भी between लगता है. So we use more than, हाँ, even for more than 2 we use between. So we have to use between the state, the center and the MRC was evident. Was evidence होता है. बताओ. B में बताओ. Was evidence होता है. Was most evident. देखो was के बाद हम 2 चीज़ें लगाते हैं. या तो we place an adjective, right? या तो we place an adjective या फिर हम लगाते हैं verb. Now you know, भाई किसी भी हाल में ये आपको पता है किसी भी हाल में कि evidence is a noun, right? Evidence क्या है? Noun है. यहाँ पर noun का कोई लेना देना है? Is there anything to do with noun? No, right? कोई noun का कोई लेना देना नहीं है. That means हमें verb भी नहीं लगाना है क्योंकि most लगा हुआ है. तो most के बाद adjective तो आ सकता है ना, लेकिन adjective evident नहीं होता. क्या होता है? Evidence होता है. Evidence नहीं होता, evident होता है. ठीक है? So we have to place an adjective here. हमें adjective का use करना है. Absolutely correct. Now, evident during the odd even scheme when the frequency of metro trains was increased to accommodate the expected rise in footfall. Again, option number C doesn't have any error. तो हमारा answer हुआ only C. जो कि आपने कहा है, that's absolutely correct. Only C is your correct answer. Now let's move on to the next question. अब चलते हैं अगले question की तरफ. Hellos. आगे बढ़ाएं. Next question. Next question. Thank you.
The only action that the university can take for an institution and its teachers is to either deny the status of an examination center to that college or to debate erring teachers from invigilation duty since 3 years. चलो बताओ, सी सही हो गया तुम्हारे सब लोग का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. अब ये बताओ इसमें क्या सही होगा. चलो बताओ 1 2 3 ABC कौन सा सही है? Okay, it's wrong. Are you sure it's wrong? The only action that the university can take for an institution and its teacher. अरे the only action, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी के लिए इट्स लगा हुआ है तो उसमें क्या गलती है? यूनिवर्सिटी के लिए इट्स लगा हुआ है तो उसमें क्या गलती है? The only action that the university can take for an institution, एकमात्र एक्शन जो यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन के लिए ले सकती है and its teachers, और उसके टीचर्स के लिए, तो इट्स इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सिटी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, इट्स टीचर्स इज टू ईदर डिनाई द स्टेटस, या तो वो ईदर डिनाई द स्टेटस ऑफ एन एग्जामिनेशन सेंटर टू दैट कॉलेज और टू डिबेट एरिंग टीचर्स फ्रॉम इन्विजिलेशन ड्यूटी सिंस 3 years. बताओ. हाँ, कैन टेक, यस एब्सोल्युटली करेक्ट. ए में एरर क्या है? व्हेनेवर यू टेक एन एक्शन, जब भी एक एक्शन लेते हैं हम, तो एक्शन किसी के अगेंस्ट में लिया जाता है, राइट? अगेंस्ट में लिया जाता है, तो शुड बी द ओनली एक्शन दैट द यूनिवर्सिटी कैन टेक फॉर इंस्टीट्यूशन. फॉर इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, एक्शन हमेशा अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन होता है. सो यू विल नॉट से फॉर, यू विल से अगेंस्ट हियर. अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन एंड इट्स टीचर. यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या फिर उसके टीचर्स के खिलाफ एकमात्र क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है, या तो वो स्टेटस को डिनाई कर दे, एग्जामिनेशन सेंटर ही ना बना दे, उसको ना बनाए टू दैट कॉलेज, और टू डिबेट एरिंग टीचर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ड्यूटी. अच्छा, सिंस 3 years नहीं हो सकता. यू डोंट नो व्हाट 3 years वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? आप सिंस 3 years की बात नहीं कर सकते, बिकॉज सिंस इज यूज व्हेन यू हैव पॉइंट ऑफ टाइम, बट 3 years लिखा है. कौन से 3 साल, कौन से 3 साल? आज से बात करोगे तो पिछले साल होंगे, पिछले 3 साल से पहले की बात होगी तो उससे पिछले 3 साल होंगे, राइट? सो यू डोंट हैव एनीथिंग परफेक्ट गिवन, सो यहाँ पर फॉर लगेगा, नॉट सिंस. सिंस का यूज नहीं होगा, फॉर का यूज करेंगे. एंड बी पार्ट में देख लो भैया, कोई एरर दिख रही है तो चलो बताओ, बी पार्ट में कोई एरर लग रही है? Teachers is to either deny the status of an examination center to that college or to debate. देखो, either के बाद भी deny लगा हुआ है, ठीक है? either के बाद भी deny लगा हुआ है, और उसके बाद और के बाद भी आपका verb given है. That means the sentence is absolutely correct. ठीक है? Yes. यहाँ पर किसी ने मुझसे एक बहुत बड़ा सा comment किया, मैं देख लूँ ज़रा उसको. कोई बात नहीं संचित, never mind. अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे ही पहुँचे हैं, आपने ज्वाइन कर लिया है, never mind. तो चलो, no, B is correct. Yes, absolutely correct. B is correct. That means हमारा अब आंसर है only C. Sorry, only B. अब हमारा आंसर है only B is correct. ठीक है? Now let's move on to the next one. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है. बताओ. While others talk of division for the country on sectarian or ethnic grounds, the center suggests that the breakup has been precipitating by socio-economic factors. बताइए यहाँ क्या होगा? जल्दी से बताओ. What should be there? Quickly tell me what should be there. टीचर्स क्यों नहीं हुआ? टीचर्स ही तो था वहाँ पे. अभी यहाँ पर बताओ क्या गलती लग रही है? चलो बताओ. While others talk of division. Okay. टॉकिंग, नो, टॉकिंग क्यों लगेगा? टॉकिंग आईएनजी फॉर्म तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब होता है. हियर वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब, राइट? है ना? यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है. वाइल अदर्स टॉक ऑफ डिवीजन फॉर द कंट्री, नहीं, कंट्री के डिवीजन की बात होती है. यस, डिवीजन कंट्री का होता है.
तो हम क्या लगाएंगे, डिवीजन ऑफ द कंट्री होगा, नॉट फॉर द कंट्री, है ना, डिवीजन कंट्री का नहीं होगा, इट शुड बी डिवीजन ऑफ द कंट्री, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द फर्स्ट एरर इज हियर, डिवीजन ऑफ द कंट्री. ठीक है, डिवीजन ऑफ द कंट्री. ठीक, अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, लेट्स सी आगे क्या दिया हुआ है. While others talk of the division of the country on sectarian or ethnic grounds, the center suggests, again we are talking about what, the center. I told you center means what, I told you center means central government, right? Center means central government, center means central government. तो यहाँ पर this is one government, singular है, तो suggest नहीं होगा, it should be suggest. ठीक है, it should be suggest का use करेंगे. और ethnic grounds, the center suggests that the breakup has been is correct, है ना. लेकिन precipitating is correct or not. एक word दिया हुआ है यहाँ पर precipitating. अब ये देखना, has been के साथ verb की fourth form तब लगती है when the subject is given before it, but the doer is mentioned after it by. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डूअर बाद में गिवन है, राइट, डूअर बाद में गिवन है, विच मीन्स व्हाट, डूअर बाद में गिवन है, प्रेसिपिटेटेड बाय. तो जब बाय से इंट्रोड्यूस होता है तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म में यूज होता है. दैट मीन्स प्रेसिपिटेटेड का यूज हम यहाँ पर करेंगे. व्हाई, बिकॉज द डूअर इज गिवन ओवर हियर. ठीक है, समझ में आया? यस, दैट मीन्स ऑल आर रॉन्ग. तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, हमारा सेंटेंस क्या होगा, हमारा सेंटेंस क्या होगा, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑल आर इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, यस, तो हमारे पास चारों में एरर है, सॉरी तीनों में एरर है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल आर इनकरेक्ट. एक ये भी होता है नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल आर इनकरेक्ट विल बी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, a Brookings Institution study of online supporters of the IS on Twitter found number of pro-IS tweets out of India too negligible to include in its survey. बताओ क्या होगा, what should be here, क्या लगना चाहिए यहाँ पर. अब इधर बताइए, what is the correct usage of this, क्या सही यूज. चलो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या गलती है यहाँ पर. अ ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन स्टडी ऑफ ऑनलाइन सपोर्टर्स, अ ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन स्टडी आई है ऑनलाइन सपोर्टर्स की ऑफ द IS ऑन ट्विटर, फाउंड नंबर ऑफ प्रो IS, फाउंड नंबर ऑफ, नाउ सी नंबर लिखा हुआ है ना. आर यू श्योर व्हाट नंबर आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या आप ये बता सकते हो कितने नंबर की बात करें, 10 है, 15 है, 20 है, 24 है? नहीं पता ना. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए में तो चलो कोई गलती नहीं निकली, ये बी का पार्ट है, बी में ही लिखते हैं. सो वी हैव नंबर गिवन ओवर हियर, बट वी आर नॉट डेफिनेट व्हिच नंबर, व्हाट नंबर आर वी टॉकिंग अबाउट, राइट? दैट मीन्स दिस शुड बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. फाउंड नंबर्स ऑफ प्रो IS tweets out of India too negligible to include in its survey. बताओ, a Brookings Institution study of online supporters of the IS on Twitter found numbers of pro-IS tweets out of India too negligible to include in its survey. That's absolutely correct. That means हमारे पास C में भी कोई गलती नहीं है. अब यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा that will be A and C. Only A and C. ठीक है, only A and C. Guys, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ. अभी हम जो ढूंढ रहे हैं ना, हम एरर फ्री सेंटेंस ढूंढ रहे हैं, राइट?
वी आर सर्चिंग फॉर एरर फ्री सेंटेंसेस. एग्जाम में हो सकता है आपको ये पूछ ले जिस सेंटेंस में एरर है वो फाइंड आउट करो. यू हैव टू फाइंड आउट वन सेंटेंस और मोर देन वन सेंटेंस which has an error, right? So you have to understand and read the directions carefully. आपको directions बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे, ठीक है, for this. चलो, तो I hope ये clear है. अब हम चलते हैं अगले question की तरफ. Let's move on to the next one. A and C correct है. Okay, to make a significance. Tweets out of India too negligible to include in survey. तो उसमें गलती क्या है? C में क्या गलती थी? A में भी कोई गलती नहीं थी. A and C, A और C में कोई गलती नहीं थी, सिर्फ B में गलती थी and that was numbers. ठीक है, that was numbers. ठीक है, द ब्रूकिंग्स नहीं होगा. ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन की बहुत सारी स्टडीज उसने दी थी. ठीक है, ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारी स्टडीज दी थी. उनमें से एक स्टडी थी इनके ऊपर, तो हम ये बात कर रहे थे. ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए बताओ क्या गलती है. While some of these country has achieved. अच्छा सुनो, इसके साथ मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी. Whenever we write sum of, एक बार फुल बोर्ड पे आ सकते हैं क्या? Thank you. Whenever we have sum of, enough of, most of, plenty of, a lot of. ठीक है, जब इनमें से कोई भी वर्ड गिवन होगा, दिस डिपेंड्स कि इसके बाद क्या लगा हुआ है. इफ यू आर यूजिंग अ काउंटेबल नाउन, अगर आप काउंटेबल नाउन यूज करते हो तो ये नाउन प्लूरल होता है. ठीक है, ये नाउन प्लूरल होता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब भी इसका प्लूरल होता है. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस अगर आप अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं, दैट मीन्स समथिंग व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, तब आप नाउन को सिंगुलर रखते हैं एंड देयरफॉर हमारा वर्ब भी इसके बाद सिंगुलर ही रहता है. गॉट इट. सो these are certain conditions. अब देखो हमारे सेंटेंस में क्या गिवन था, यहाँ पर दिया हुआ था सम ऑफ द, राइट. हमने लिखा हुआ था सम ऑफ द, वापस ले आइए क्वेश्चन को. हमने दिया हुआ था सम ऑफ, राइट. जब हमने सम ऑफ दीज का यूज किया है तो उसके बाद कंट्री नहीं लगना चाहिए, बिकॉज यू कैन काउंट इट. वो काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है तो आप क्या करोगे, कंट्रीज का यूज करोगे. और कंट्रीज प्लूरल है, दैट टेक्स अस टू ऑप्शन नंबर ए कि उसमें हैव भी लगना चाहिए, राइट. Some people, so some of these countries have achieved impressive results from those programs and measures. Others have failed to make a significant dent. सुनो, others have made, B वाले में आपने क्या लिखा है, to make a. सुनना मेरी बात, a के बाद कुछ देना चाहिए था, a के बाद नाउन आना चाहिए था. नाउन इज डेंट, जो कि दिया हुआ है किसमें, C में. नाउन इज डेंट विच इज गिवन इन C. ठीक है, दिया हुआ है C में. तो इससे पहले जो आएगा वो सिग्निफाई तो नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी अ वर्ब, वो वर्ब नहीं हो सकता. तो हम लगाएंगे क्या, बताओ. इट कैन नॉट बी अ वर्ब, तो हम लगाएंगे क्या, इट हैज टू बी एन एडजेक्टिव एंड देयरफॉर हम लगाएंगे सिग्निफिकेंट. ठीक है, हम लगाएंगे सिग्निफिकेंट. तो B में भी एरर है. Others have failed to make a significant dent in the problem of persistence, rural underdevelopment. बताओ persistence rural होगा या फिर persistent rural development होगा. देखो एक बात हो रही है किसकी, रूरल डेवलपमेंट की. ठीक है, एक बात हो रही है रूरल डेवलपमेंट की, और ये रूरल डेवलपमेंट कैसा है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिफाइन. वो कैसा है तो नाउन नहीं लग सकता, वो कैसा है वो नाउन नहीं लग सकता, तो हमें लगाना है पर्सिस्टेंट का यूज. दैट मीन्स C में भी एरर है. A में एरर हुई क्या, कंट्रीज एंड हैव. B में एरर हुई सिग्निफिकेंट. थर्ड में एरर हुई क्या, पर्सिस्टेंट रूरल अंडर डेवलपमेंट होगा, नॉट पर्सिस्टेंस. पर्सिस्टेंस इज अ नाउन. ठीक है, दैट मीन्स अगेन हमारा आंसर हो गया क्या, ऑल आर इनकरेक्ट. दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड अ करेक्ट सेंटेंस हियर, है ना. हमें यहाँ पर कोई भी सेंटेंस करेक्ट नहीं मिला. ठीक, क्लियर है. यस, नन फॉलोज, ऑल आर इनकरेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ऑल आर बीमार, काहे के लिए बीमार. चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट्स सी व्हाट्स गिवन. There will be no scrutiny or inquiry of money declared neither under the Income Tax Act or Wealth Tax Act, and the declarants will have immune from prosecution. बताओ इस क्वेश्चन में जल्दी बताइए क्या गलती लगती है आपको. What do you think the correct answer is, and
What are the errors in the remaining parts? बताइए. Okay. Okay. चलो बताओ. नॉर कहाँ पे लगेगा? यस, चलो वो बी का बार, पहले भाई ए में तो एरर बता दिया करो. चलो एज यू सी नीदर स्टार्ट, बी स्टार्ट्स विद नीदर, तो नीदर के साथ और तो लगता नहीं है ना, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग और वी विल प्लेस नॉर. ये बी का पार्ट का एरर है. ए और सी में भी बता दो. देयर विल बी नो स्क्रूटनी और इंक्वायरी ऑफ मनी डिक्लेयर्ड. ठीक है, कोई स्क्रूटनी और इंक्वायरी नहीं होगी उसकी, किसकी? जो मनी डिक्लेयर किया गया है. नीदर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट नॉर वेल्थ टैक्स एक्ट. एक और गलती है भाई, देखो व्हेन आई से इनकम टैक्स एक्ट तो ये दूसरा एक्ट हो गया है ना, और जब हम बोले वेल्थ टैक्स एक्ट तो ये दूसरा एक्ट हो गया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स. तो हाउ कैन वी यूज द बिफोर ओनली वन? अगर हम दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं तो हम द सिर्फ पहले वाले के आगे क्यों लगाएंगे, दूसरे वाले के आगे भी तो लगाएंगे. द इनकम टैक्स एक्ट एंड द वेल्थ टैक्स एक्ट. ठीक है, तो यहां पर दो एरर्स है हमारी, नॉर और एक द. अब सी में देखो क्या गलती है. सी में द डिक्लेरेंट्स विल हैव इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. विल हैव इम्यून नहीं, will have something, they will have it, that means वो own करेंगे. और own किस चीज को करते हो? noun को, right? when I say they will have it, that means they will own it. खाएंगे तो है नहीं, है ना? they will have immunity from prosecution. ठीक है, they will have immunity from prosecution. immunity is the correct word, immune is incorrect. ठीक है, incorrect होगा, immunity is the correct word here. got it? now let's move on to the next question. चलते अगले question की तरफ. The process to be adopted by the government for these activities has to be defined because the government is responsible for any objects put up in space and for what happens to it in orbit or because of. अरे one second. चलिए ए में हम तब तक डिस्कस करते हैं. ए में क्या गलती लग रही है आपको? What do you think? Is there any error in part A? Some part of it is not visible. Let's just quickly do that. One second. The process to be adopted by the government for these activities, वो process जो क्या किए गए हैं, हाँ, वो process जो government के द्वारा to be adopted by the government, जो गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए जाने चाहिए, अभी अडॉप्ट हुए नहीं है. ठीक है, अडॉप्ट किए जाने चाहिए फ्रॉम दीज फॉर दीज एक्टिविटीज. इन एक्टिविटीज के लिए हैज टू बी डिफाइंड बिकॉज द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. वो डिफाइन करने ही पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए. एक सेकेंड. बिकॉज ऑफ इट. ओके, अच्छा इट नहीं दिख रहा है मुझे, सेंटेंस इट में एंड हो रहा है, इट पे. ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए में बताओ क्या गलती लग रही है आपको. द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, वो प्रोसेस जो गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट होनी चाहिए फॉर दीज एक्टिविटीज. ए पार्ट में कोई गलती लग रही है और इज इट करेक्ट? बताइए, इट्स इनकरेक्ट और इज इट करेक्ट? एंड इफ इट्स इनकरेक्ट व्हाट्स द एरर देन? बताओ. द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, the process to be adopted correct है ना? absolutely correct guys, there is no error in this sentence, so option number B is correct. A is correct. B में देखो, activities has to be defined, is it correct? the process to be adopted by the government for these activities has to be defined, absolutely correct. why? because here has जो word use हुआ है, has किसके लिए use हुआ है? process के लिए use हुआ है which is given in A. ठीक है, तो has is absolutely correct. has to be defined because the government is responsible for any objects. B में गलती बताओ. is there an error in B? has to be defined because the government is responsible for any. हाँ, have नहीं होगा, has is absolutely correct because has is used for process which is singular, तो process के लिए use हुआ है, has correct है. no error in B. बी में नहीं बाबा, प्रोसेस के लिए यूज हुआ है तो प्लूरल क्यों करोगे? एक्टिविटीज नहीं है, सुनो मेरी बात. द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज एक्टिविटीज, वो प्रोसेस जो गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट होगी इन एक्टिविटीज के लिए. तो वी आर टॉकिंग, वो एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस, राइट? हैज टू बी डिफाइंड. वो प्रोसेस जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी इन एक्टिविटीज के लिए, उसे डिफाइन करना है. किसे? प्रोसेस को, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस हियर. नाउ
When the sentence is ending with any here and C starts with objects, ये बताओ हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, is there any boy in the class? Do you have any pen? Do you have any empty bottle? तो आप any के बाद क्या लगा रहे हो? You're using singular verbs, singular subjects, right? तो singular के according objects भी नहीं होना चाहिए, object का use होगा. For any object put up in space and for what happens to it in orbit or because of it. Got it? Okay? समझ में आया? So that means option number C में हमारे पास error है और B और A में कोई error नहीं है. तो अब की बार हमारा आंसर बना है only A and B. ठीक है? This time our correct answer is only A and B. Got it? The space नहीं, put up in space and for what? हाँ, in space नहीं होगा, in the space होगा. In the space होगा क्यों? क्योंकि space is a unique thing, right? Space एक unique thing है, इस वजह से हमें वहाँ पर the लगाना जरूरी है. ठीक है? तो आई सपोज ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का. सो आई सपोज आपको जितनी चीज़ें आज हमने पढ़ाई हैं वो समझ में आई होंगी. ये एक नई चीज़ देखने को मिली, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ. इन सब के बाद डिपेंड्स ऑन नाउन. इफ द नाउन इज काउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल नहीं, मेरी बात सुनो. इफ द नाउन इज काउंटेबल, द नाउन विल बी प्लूरल एंड द वर्ब विल बी प्लूरल एज वेल. If the noun used is uncountable, then the verb and noun, both of them will be singulars. ठीक है? So यहाँ पर हाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आज. सो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, बिकॉज आई कैन सी आपका नंबर है 4 और वीडियो के लाइक्स का नंबर है 3 डिजिट्स में. सो जल्दी से इसको लाइक करिए. और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यू आर requested to follow the channel, subscribe the channel. That's it for today guys. Thanks a lot for joining me here. Bye bye, take care of yourselves. हम मिलेंगे वापस कल 10 बजे. Bye bye.